حریت سے PDP تک کا سفر کیوں کرنا پڑا؟ کیا آئیڈیالوجی صحیح نہیں لگی؟ سفر تو سیم ہے، مگر اس وقت جیسے حالات ہیں، آپ دیکھیے ہمارا حال بے حال ہے، ہمارے مستقبل پر بھی انسرٹنٹی چھائی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ BJP کو اندر لانے میں PDP کا ایک بڑا ہاتھ ہے۔ اس وقت تو مجبوری تھی، اور کس کے ساتھ کرتے؟ اگر اس وقت BJP کے ساتھ کولیشن نہیں کرتے اور کس کے ساتھ؟ پہلے تو میں واضح کرنا چاہوں گا کہ جب PDP نے BJP کے ساتھ حکومت بنائی، میں اس جماعت کا حصہ نہیں تھا۔ السلام علیکم، خیر مقدم ہے آپ کا دا کشمیریت میں شبیر علی کے ساتھ۔ آج کے مہمان ہمارے ساتھ آغا سعید حسن صاحب کے فرزند آغا سعید منتظر مہدی موجود ہے، جو کہ پہلی دفعہ PDP کے لیے بڑگام سیٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں۔ آغا صاحب، آپ کا پہلے سب سے بہت شکریہ۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ چلنے کے لیے صبح سے۔ آغا صاحب، جیسا کہ پہلی دفعہ آپ الیکشن لڑ رہے ہیں، آپ کے والد صاحب جو کہ حریت سے وابستہ رہے ہیں، اور ابھی جو کہ آپ الیکشنز میں جانے والے ہیں، کیسا حریت سے PDP تک کا سفر کیوں کرنا پڑا؟ کیا آئیڈیالوجی صحیح نہیں لگی؟ نہیں، دیکھیے سفر تو سیم ہے، مگر اس وقت جیسے حالات ہیں، آپ دیکھیے ہمارا حال بے حال ہے، ہمارے مستقبل پر بھی انسرٹنٹی چھائی ہے، غیر یقینی صورتحال ہمارے مستقبل پر بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ ہمارے ماضی پر بھی اس وقت سوالات کھڑے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ایسا فورم چننا ضروری تھا، ایسا ایوان چننا ضروری تھا جہاں ہم اپنی بات رکھ سکتے ہیں۔ جس کشمیری عوام جس کشیدگی کا شکار ہے، اس کشیدگی سے ان کو نکالنے کے لیے کوئی ایسا پلیٹ فارم ڈھونڈنا لازمی تھا جہاں پر ہم بحیثیت کشمیری وہ کردار ادا کر سکتے تھے، تاکہ کشمیریوں کی صورتحال میں کچھ بہتری لا سکیں۔ بہت سارے الزامات عائد ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ نے کہا۔ میرا پہلا سوال رہے گا، PDP ہی کیوں آپ نے چوز کیا؟ دیکھیے، پہلے تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جماعت اس وقت ضلع بڑگام اور بڑگام کانسٹیچوئنسی کے لوگوں نے اس جماعت کا انتخاب کیا۔ یہ بڑگام کی تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا ہے جہاں لوگوں نے اپنی جماعت کا انتخاب کیا اور کینڈیڈیٹ کا انتخاب کیا۔ پہلے روایت یہ رہتی تھی کہ پارٹی ہی مسلط ہوا کرتی تھی بڑگام پر، اور کینڈیڈیٹ مسلط ہوا کرتے تھے بڑگام پر۔ جہاں تک اس پارٹی میں شمولیت کرنے کا تعلق تھا، اس پارٹی نے دو ٹوک یہ واضح کیا اپنے منشور میں کہ 5 اگست 2019 میں جو کارروائی ہوئی، اس نے یہاں کی سیاسی غیر یقینی صورتحال کو بڑھاوا دیا، مگر یہاں کی غیر سے یقینی صورتحال کی وجہ اصل کہیں اور ہے۔ یہ سمٹمز ہو سکتے ہیں، مگر اصل وجہ مسئلہ کشمیر ہے۔ ان نے دو ٹوک اپنے مینیفیسٹو میں اس کو اون کیا کہ ابھی بھی یہاں پولیٹیکل گریونس ہے۔ جو پولیٹیکل گریونس 4 اگست 2019 کو موجود تھی، وہ آج بھی 10 اگست 2024 میں موجود ہے۔ تو وہاں ہمیں تھوڑا اسپیس لگا ان سے الائن ہونے کا، اور کشمیریوں کو اس کشیدگی نکالنے میں ہمیں لگا کہ اسی جماعت سے ہم جڑ سکتے ہیں اور اپنا رول بہتر طریقے سے ادا کر سکتے ہیں۔ اگر سب کہا جاتا ہے کہ PDP ہی ایک وجہ ہے BJP کو یہاں لانے کی، اور اسی وجہ سے 370 بھی منسوخ ہوا ہے، جیسا کہ PDP BJP الائنس ہو، تو وہ ایک وجہ بتائی جا رہی ہے۔ آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، پہلے تو میں واضح کرنا چاہوں گا کہ جب PDP نے BJP کے ساتھ حکومت بنائی، میں اس جماعت کا حصہ نہیں تھا، تو یہ ہماری جماعت کی قیادت ہی واضح طور بتا سکتی ہے کہ کیا وجوہات رہی ہوگی، کہ کیا مقصد تھا اس الائنس کے بیچ۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی جماعت ہو، چاہے وہ نیشنل کانفرنس ہو، کانگریس ہو، PDP ہو، کوئی بھی ہو، ان کو کشمیریوں کے جذبات اور احساسات کے منافی کام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر سب کہا جاتا ہے کہ جب تک حریت کی سیاست سڑکوں پر نظر آ رہی تھی، تب تک آپ حریت کا دامن تھامے تھے، لیکن اب جب حریت کی سیاست سڑکوں پر سے کم ہونے لگی ہے، تو آپ مین سٹریم میں اپنے قدم جمانا چاہتے ہیں۔ یہ مین سٹریم اور حریت کا یہ اجتماعی فیصلہ ہے، یہ کلیکٹیو فیصلہ ہے۔ اس کو
जमात किसी जमात के साथ आप कन्फाइन नहीं कर सकते हैं। हम समझते हैं कि अगर हम अपने आप को समाज में एक ज़िम्मेदार शख्स समझते हैं, अगर मैं अपने को इंटरफेथ डायलॉग एक्टिविस्ट कहता हूँ या कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट कहता हूँ या इन्फ्लुएंसर कहता हूँ, मेरा ये रोल बनता है कि मैं इस वक्त लोगों जिस कशीदगी का शिकार है, ये मेरी इखलाकी भी ज़िम्मेदारी बनती है, कानूनी भी ज़िम्मेदारी बनती है और शहरी ज़िम्मेदारी भी बनती है कि मैं कोई रोल अदा करूँ ताकि मैं अपने लोगों जो इस वक्त जो सफ़र कर रहे हैं इज्तिमाई तौर, जिनको कलेक्टिवली हमें पनिश किया जा रहा है इस वक्त, तो उसमें मैं अपना रोल अदा करूँ। कौन से ऐसे 3 बड़े काम हैं जो आप बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए करना चाहते हैं? कौन से बड़े 3 वादे हैं? देखिए, जो मेरी ज़िम्मेदारी मेरे कंधों पर, इसके दो टाइप्स हैं। एक तो मेरी कलेक्टिव ज़िम्मेदारी है, जो हम कलेक्टिव एज अ कश्मीरी इज्तिमाई तौर हम इस वक्त निशाने पर हैं, चाहे वो हमारी सियासी शनाख्त हो, इज्तिमाई तौर हो, समाजी तौर, वहाँ मुझे इस वक्त रोल करने की ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा इस वक्त मजहबी तौर, आप देखिए आए दिन सरकार की मुदाखलत किस तरह शरई उमूर में बढ़ती जा रही है, चाहे वो वक्फ़ का मसला हो या कोई और मसला हो, उसमें से रियासत की अमल दखल दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सरकार की कोशिश है कि हम कश्मीर की हर कोई मजहबी रसूमात हो उसको हम कंडीशनल बनाएं, अगर आप ऐसे चलेंगे तो हम आपको ये रस्म अदा करने की इजाज़त देंगे। उस पर मुझे बात करनी है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है कि रियासत का मजहबी अमूर में कोई अमल दखल नहीं है, ये शहरी का अंदरूनी इसका ज़ाती मसला है, तो क्या वजह है यहाँ पर कश्मीर में दीनी अमूर में सरकार की मुदाखलत बढ़ती जा रही है? क्या आपको नहीं लगता है कि ऐसे सूरत हाल में एक आवाज़ उठनी चाहिए ताकि वो किसी भी फोरम में उसके ख़िलाफ़ मज़ामत करे, उसके ख़िलाफ़ एहतजाज करे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम नवाब अहमद भट्ट है। आप यहाँ पर आज पीडीपी की रैली में क्यों आए हैं? इसीलिए आए हैं कि चेंज देखना चाहते हैं। और दूसरी बात है कि पिछली गवर्नमेंट जो भी थी यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस तकरीबन पिछले 20 साल थी। आप देख रहे हो कि आप आज पूरे दिन को हमारे साथ थे, आपने देखा कि रोडों की कैसी खस्ता हालत है। इसी वजह से हम चाहते हैं कि नया चेहरा है, यंग लीडर है, इसीलिए हम चाहते हैं कि इस बार हम चेंज लाएंगे। क्या आपको लगता है जो पिछली हुकूमतें थे उनने कोई काम नहीं किए? ये तो जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है। जो लोग आज कह रहे हैं कि हम 370 वापस लाएंगे, उन्होंने नहीं तोड़ा है। 1987 से लेकर आज तक अगर आप देखोगे यहाँ पे जितना भी कत्ल गारत हुआ है वो उन्हीं हुकूमतों ने तो किया है। क्या पीडीपी का ये मंशूर नहीं है कि 370 वापस आना चाहिए? वो तो है, वो तो नई पार्टी। आपको पता है 2014 में वो इक़्तिदार में आई थी, उसके बाद फिर उसको मौका भी नहीं मिला। जब आपने पता है कि मुफ्ती मोहम्मद सईद का इंतकाल के होने के बाद फिर अचानक से लोग हमारे कुछ पीडीपी में कुछ लोग निकले जो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ उस वक्त बात कर रहे थे कि हम अलग से उनके साथ हुकूमत बनाएंगे। लेकिन इस बार हमने कहा कि इस बार चेंज होगी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वज़ीर आज़म से लेकर वज़ीर आला तक आ गए, वो हो गया, ये हो गया, वो किस धारा 370 की बात कर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और आपको पता है जो हमारा इस वक्त मध्य मुकाबल ये है उमर अब्दुल्ला, आपने देखा वो गांदरबल से भाग कर आया, वो सोनवाड़ से भाग कर आया, वो बीरवा से भाग कर आ गया, अब हमारे टाउन में आया। इंशाअल्लाह रहमान इस बार हम उसको कड़ी शिकस्त देंगे। जिस तरह बंगाल में एक कहावत थी कि अब यहाँ पे खेला हुए, अब कश्मीर में भी खेला हो गया और बड़गाम में भी ज़्यादा खेला हो गया। आपको क्या लगता है कौन से काम जो कि इम्पोर्टेंट है बड़गाम में होने चाहिए जो अभी तक नहीं हुए? यहाँ पे कॉलेज नहीं है, यहाँ पे हस्पताल नहीं है। 2-3 चीज़ें ना जो सोसाइटी में ज़रूर होना चाहिए। तालीम पर नज़र होनी चाहिए, हेल्थ पे नज़र होनी चाहिए। दूसरी बात कि आजकल जो सबसे ज़्यादा वबा फैला हुआ है वो ड्रग है। जवानों को कैसे रोकें हम, इसीलिए काम होना चाहिए ना। हमारे जवान यूथ किस तरह जा रहे हैं, हमारी बच्चियां ड्रग्स कर रही है, ये एक बड़ा अफसोस का मुकाम है। रोकने के लिए तो जवान को आना पड़ेगा। 1 लीटर के भरोसे कौम को मत ना छोड़ेंगे। और उन लोगों पे जिन लोगों ने इधर कब्रिस्तान आबाद किए उनके हवाले कौम को तो नहीं कर सकते ना। कहा जाता है कि बीजेपी को अंदर लाने में पीडीपी का एक बड़ा हाथ है। उस वक्त तो मजबूरी थी, और किसके साथ करते? अगर उस वक्त बीजेपी के साथ कोलिशन नहीं करते और किसके साथ? हमें पूरी शक था उस वक्त के सेंटर में बीजेपी गवर्नमेंट है, तो जो यहाँ के मसाइल है हम उनको बिल्कुल उनसे मांगेंगे, वो मसाइल वो पूरा हो जाएंगे। और जो आपने देखा नहीं, जो एग्रीमेंट हमने उनके साथ किया था उस वक्त मुफ्ती मोहम्मद सईद ने, वो लिखा पढ़ा के किया था। वो ऐसे नहीं किया था कि हाँ हुकूमत करेंगे, हम हुकूमत के भूखे थे। और जो मुफ्ती मोहम्मद सईद है, आपको पता नहीं, वो होम मिनिस्टर रह चुका है हिंदुस्तान का। वो कुर्सी के लिए भूखे नहीं थे कि वो आज चाहता था कि मैं जल्दी कुर्सी पकड़ूं, सीएम की कुर्सी। उसको उसकी अखत लालच नहीं थी। हमने उस वक्त ट्रेड खोला, आपने देखा होगा मुजफ्फराबाद में ट्रेड खोला, और यहाँ पे जो जवानों के ऊपर FIR लगे थे वो कम कर दिए। और दूसरी बात, जो जेलों में लड़के थे हमने उनको बाहर छोड़ा उस वक्त। सबसे बड़ी बात ये थी ना, यहाँ पे लोगों ने राहत की सांस ली।
यहाँ लोग 10-10 साल के बाद अपने घरों में वापस सोए। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुलजार अहमद है, मैं नसरुल्लाहपुरा से बिलोंग करता हूँ। आज पीडीपी की रैली में आने का मकसद क्या था आपका? पीडीपी की रैली में आने का मकसद है हमारा जो ये बड़गाम है, ख़ासकर कॉन्स्टिट्यूंसी बड़गाम, हम अपनी जो यहाँ की तामीर व तरक्की ये नाकाफ़ी है। हम जब ये इस गांव का नाम आबादपुरा है, मैं यहाँ से बहुत बार गुज़रा हूँ, तो लेकिन आज अंदर गाँव में जाने का मौका मिला तो मैं मायूस हुआ हूँ कि यहाँ की जो डेवलपमेंट, लेन्स, ड्रेन्स, इलेक्ट्रिक सिस्टम, पावर सिस्टम, बिजली का जो निज़ाम ये दरहम बरहम। इसलिए हम आज बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी के बाशऊर लोग घरों से निकल कर आए हैं कि हम पीडीपी का साथ देंगे। खासकर जो हमारे जो कदावर कैंडिडेट मैदान में आए हैं उसका हम साथ देंगे कि इस मुसीबत में हम फंसे हुए हैं, जहाँ की एक कॉन्स्टिट्यूंसी की जो डेवलपमेंट होती है जैसे अदर कॉन्स्टिट्यूंसीज, उस लिहाज से हम 0% है। इसलिए आज हम ये डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं कि अपने लोगों को बता रहे हैं कि आप घरों से निकले और पीडीपी के उम्मीदवार को आप कामयाब बनाएंगे, और ताकि हम जो डेवलपमेंट यहाँ होनी चाहिए वो इंशाल्लाह हो जाएगी। इसलिए हम घरों से निकले। क्या लगता है क्या क्या नहीं हुआ है जो होना चाहिए? अगर हम बात करेंगे एजुकेशन सिस्टम की, अभी मैंने एक यहाँ स्कूल देखा है जो प्राइमरी स्कूल है, इसकी खस्ता हाली, मतलब आज गवर्नमेंट मरकज़ी सरकार दावा करती है कि हमारा एजुकेशन सेक्टर, एजुकेशन सिस्टम बहुत फाल है, उसमें मतलब एक डेवलपमेंट हुई, लेकिन बदकिस्मती की बात है हमने देखा कि एजुकेशन सिस्टम में पूरा फेलियर है। अगर देखा जाएगा, दूसरी बात यह है कि हेल्थ सिस्टम, हेल्थ सेक्टर में अगर बात करेंगे, यहाँ 10-15 गाँव इस इलाके से और शूलीपुरा में उनको एक पीएचसी गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है, और जिसमें 1-2 डॉक्टर अवेलेबल हो जो 10 या 15 बंदों का भी इलाज नहीं कर सकते। एक और सवाल मेरा रहेगा, जैसा कि आगा रुहुल्लाह मेहदी जो कि सीट पर काफ़ी वक्त से अपना असर रखे हुए हैं और आपके वालिद साहब ने भी इस बड़गाम के लिए बहुत सारे काम किए, क्या आपको लगता है कि वो असर आपको असेंबली हल्के तक पहुँचा सकता है? देखिए, मैं आपसे फिर ये गुजारिश करूँगा कि आप इसको बतौर फैमिली डिसीजन नहीं है, ना ये फैमिली फ्यूड है, तो फैसला यहाँ के बुज़ुर्गों और जवानों का है। ये कहना शायद गलत होगा कि बड़गाम में अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज या डेवलपमेंटल वाइज काम नहीं हो, काम हुआ है मगर उस स्पेस पर, उस रेट पर काम नहीं हुआ है जिस तरीके से हम बाकी अजलाओं में देखते हैं। मैंने स्टडी किया, मैं इलेक्शन से आने से भी पहले वास्ता बिला वास्ता समाजी उमूर में जुड़ा था, मगर यहाँ का हर शोबा डिस्टर्ब्ड है, अंडर डेवलप्ड है। चाहे आप एजुकेशन देख लीजिए, आज भी 2021 से लेकर 2024 तक यहाँ की लिटरेसी रेट 50%, उस पर काम करने की ज़रूरत है। सड़कों का हाल आप देख रहे हैं, कोई सड़क नहीं है। बेसिक मतलब मैं ये समझता हूँ कि बड़गाम में इंसानी हुकूक की बदतरीन पामालियाँ हुई हैं। चाहे आप यहाँ का पानी देख लीजिए, आज भी दूध पथरी, तोश मैदान या बाकी इन जगह के होने के बावजूद भी बड़गाम का हर घर इस वक्त कंटेमिनेटेड वाटर पी रहा है। सरकार का नारा है हर घर जल, हर घर नल, मगर बड़गाम में आज भी 2024 में जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब एडवांस चीज़ों की बात कर रहे हैं, कंटेमिनेटेड वाटर पी रहा है। या एग्रीकल्चर देखिए, बड़गाम भी एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट है, मगर जो 2018-19 की स्टडी है, यहाँ का एग्रीकल्चर एक्टिविटी 5% डिक्लाइन पर है। बाकी इरिगेशन यहाँ का 9% डिक्लाइंड है। सिमिलरली जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो भी 12% डिक्लाइंड है। तो यहाँ का हर शोबा, हर डिस्टर्ब्ड है, अंडर डेवलप्ड है। साउथ इंडिया सिग्नेटरी है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हेल्थ का एक मरकज़ी किरदार है, मगर आप यहाँ का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए। अगर हम बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करेंगे, 1 लाख से ज़ायद वोट है, मगर इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए 100 बेडेड हॉस्पिटल है। तो ये कहाँ से सस्टेनेबल डेवलपमेंट है? ये चीज़ें हैं, मैं आपको ऊपर से ही बता रहा हूँ कि यहाँ क्या क्या मसले हैं। तो ये चैलेंजेस हैं, मगर जो मेरी इलाकाई ज़िम्मेदारी है, मैं इंशाल्लाह बखूबी वो निभा कर बड़गाम को उन बाकी अजलाओं के हम पर लाने की कोशिश करूँगा, ताकि यहाँ पर भी बेसिक ग्रीवेंसेस है जो गवर्नेंस की है वो रिजॉल्व हो सके।
آخری سوال میرا رہے گا آغا صاحب، جیسا کہ بی جے پی یہ کہہ رہی ہے 2019 کے بعد کشمیر میں حالات ٹھیک ہے، اسٹون پیلٹنگ نہیں ہے، جو کہ ہم نے گن کو بند کر دیا ہے، تو آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے 2019 کے بعد حالات قابو میں ہیں، کنٹینڈ اور قابو کو آپ حل نہیں کہہ سکتے۔ کشمیر ایشو کی جو ہے پولیٹیکل گریونس ہے وہ ابھی بھی انٹیکٹ ہے، جو کل تھی وہ آج ہے۔ پھر راجناتھ سنگھ کو کل کیوں بیان دینا پڑا کہ ہم ڈائلاگ کے لیے تیار ہیں؟ یہ ان کو بھی پتہ ہے کہ یہاں کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی موجود ہے، یہاں کی پولیٹیکل گریونس ہے۔ اب یہ وہ آپٹکس کر رہے ہیں تاکہ ملک کے آڈینس کو وہ اٹریکٹ کرے کہ ہم نے یہاں جی سب کچھ ٹھیک ہے۔ پھر کیا آپ راجناتھ سنگھ کو کیا ضرورت تھی یہ کہنے کی کہ ہم ڈائلاگ کے لیے تیار ہیں؟ ڈائلاگ کس پر کرنا ہے؟ یہاں کچھ ہے پھر جس پر ڈائلاگ کرنا لازم ہے؟ تو یہ خود درشاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں بی جے پی اس چیز کو ایکنالج کر رہی ہے کہ پولیٹیکل گریونس ابھی بھی کشمیر میں ہے۔ آغا صاحب آخری سوال، کون سی ایسی سماجی برائی ہے جو آپ سب سے پہلے یہاں پر بدلنا چاہیں؟ دیکھیے یہاں ایک ہو تو میں بتاؤں، اس وقت سب سے زیادہ چیلنجنگ جو ہے ڈرگس ہے۔ آپ دیکھیے کہ ڈرگس کیسے اس نے ہمارے سماج میں جگہ لی ہے، وہ چیلنج ہے، اس کو ٹیکل کرنا، اس کا خاتمہ کرنا میرے خیال سے ہم سب کی اجتماعی طور اولین ذمہ داری ہے۔ آغا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بہت یہ ہمارے ساتھ تھے آغا سعید منتظر مہدی، جو کہ پی ڈی پی کے کینڈیڈیٹ بڈگام سیٹ پر اپنا ان نے مینڈیٹ لیا ہے اور یہ لڑ رہے ہیں سابق سی ایم عمر عبداللہ کے خلاف بڈگام کانسٹیٹوئنسی میں۔ یہ رپورٹ پہنچا رہا تھا میں شبیر علی، بڈگام سے عاصم بٹ کے ساتھ دا کشمیریت کے۔